My dear student, though in this chapter we have concluded all the topics, but the last two heads were remained in the previous video. But in this video I want to continue about the form of power sharing or the type of power sharing, how power is shared. In democratic government, the government power shared in different way. The first one is among different organs of the government, and this type of power sharing is known as horizontal power sharing. Horizontal power sharing. In this type of power sharing, the government power is distributed or shared in three organs of the government, that is legislative, executive and judiciary. The body which is for making law is known as legislative. It means the legislation work is done by legislature. Execution or the implementation of the law made by legislature is done by executive, कार्यपालिका. And to provide justice there is judiciary. To provide justice there is judiciary. If there is any conflict between different organs of the government or two government, state and central government, or in government and people, or people among people and people, if there is any conflict, then there is judiciary to resolve the problem. So this is the way of horizontal power sharing, and the power is equally distributed in these three organs, and no one will interfere in the matter of the power of any organ. The next is vertical power sharing. The power is shared in this way that a government is for whole country is at top level central government. For states there is state government, and at local level local governments. These three organs are, or these three government are in sequence, in order. इनको एक ऑर्डर रखा गया है ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. At top level central government, middle level state government and bottom level local government. This type of power sharing is known as vertical power sharing. As you know, this is vertical power sharing. The main power is in hand of central government. State government have also power, but the priority is given to the central government. And at local level there is local government. This type of power sharing is ensured in our constitution to facilitate and to provide facilities to solve the issues of every section of society. Every people, हर व्यक्ति की समस्या का निदान करने के लिए, चूँकि एक जगह के एक केंद्र से पूरे देश का शासन चलाना संभव नहीं है, हर व्यक्ति की समस्या का निदान संभव नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट के पावर को विभिन्न स्तर पे, विभिन्न तरह स्तर पे बांट के रखा गया है. चाहे केंद्रीय स्तर की बात करें, राज्य स्तर की बात करें या स्थानीय स्तर की बात करें. एंड पावर इज आल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप की बात करें, सामाजिक समूहों की, तो उनके बीच में भी पावर शेयरिंग है. सोशल ग्रुप यानी समाज का ही एक वर्ग है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पावर समाज के हर व्यक्ति द्वारा इस पावर का निर्माण हुआ है. गवर्नमेंटल पावर की बात करें या गवर्नमेंट पावर की, तो और इस गवर्नमेंट पावर की एक्सरसाइज करने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, हर वर्ग प्रभावित होता है. इस नाते हर समूह का प्रतिनिधित्व है सरकार में, और इसीलिए हमारे संविधान में या अन्य कानूनों में व्यवस्था की गई है कि हर समूह, हर
सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत में रिजर्वेशन सिस्टम जो लागू किया गया है वो इसी सोशल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ही किया गया है। चाहे पार्लियामेंट्री सीट की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, या अन्य गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जो वीकर्ड सेक्शन हैं, सोशली वीकर्ड हैं, फिजिकली वीकर्ड हैं, इनकी बात करें, चाहे डिसेबल्ड की बात करें, वुमेंस की बात करें, इन सब के लिए पावर शेयरिंग है। यानी इनके लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है। समाज का कोई भी वर्ग छूटे ना, कोई व्यक्ति ना छूटे, हर व्यक्ति को उसकी सुविधा के हिसाब से लाभ मिले, ऐसा गवर्नमेंट प्रयास करती है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा प्रयास किया जाता है। इस नाते हम कहते हैं कि पावर की शेयरिंग सोशल ग्रुप्स में भी है, सामाजिक समूहों में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर इज़ शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। अब हम यहाँ कैसे कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर शेयरिंग है? तो हर वो वर्ग, हर वो समूह जो सरकार के लेजिस्लेशन वर्क में, सरकार के विधायन कार्य में प्रभाव डाल सकता है, यानी कि सरकार के विधायन को प्रभावित कर सकता है, उसकी पावर शेयरिंग है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, भले ही कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लोगों के काफ़ी अच्छे समूह को बिलोंग करती है, काफ़ी अच्छी संख्या को बिलोंग करती है। इस नाते उसकी भी गवर्नमेंट में सेइंग होती है, गवर्नमेंट के कार्यों में उसकी भी दखल होती है। वो अपने हिसाब से विधायन को निर्धारित करते हैं, वो दबाव देते हैं गवर्नमेंट पे कि इस वर्ग के लिए ऐसे वर्क होना चाहिए, भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो या ना हो। इस तरीके से कहते हैं कि पावर शेयरिंग है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। द गवर्नमेंट फंक्शनिंग इज कंट्रोल्ड बाय these political parties. They have also saying in the government activities or government power and functioning. They have also influence over the government power. Why? Because they belong to a major section of society. And pressure groups are also have a power sharing. प्रेशर ग्रुप्स की बात करें, दबाव समूहों की, इंटरेस्ट ग्रुप कह सकते हैं, हित समूह या दबाव समूह। तो अलग अलग समाज में समूह हैं, उनकी चर्चा होती है। कौन से समूह? जैसे युवाओं का कोई मोर्चा हो, BJYM कह सकते हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा, या बामसिफ जो बसपा की युवा इकाई है, इस तरीके से। या अधिवक्ताओं का कोई वर्ग है, अध्यापकों का कोई समूह है, वर्ग है, संघ है, जो समाज के एक वर्ग का समूह है और समाज के एक वर्ग का हित या लाभ चाहता है, उसका भी गवर्नमेंट पे प्रभाव है। क्यों? क्योंकि इस समूह में काफ़ी सारे लोग जुड़े होते हैं और काफ़ी सारे लोगों का हित इस समूह के माध्यम से प्रभावित होता है। ये काफ़ी सारे लोगों का हित, सरकार उनके हितों के लिए काम करने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि ये समूह जो है दबाव देते हैं सरकार पे विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। और सरकार को लगता है कि चूँकि बहुत सारे संख्या है लोगों की, इनकी भी आवाज़ सुननी चाहिए। इस तरीके से इनकी पावर शेयरिंग है। सो दीज आर द मेथड, दीज आर द फॉर्म्स थ्रू विच पावर इज शेयर्ड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Why? To make accommodation in society or in country. We see the cases of Sri Lanka and Belgium. The role model of power sharing is Belgium. Though some people find it very complex, but it is a role model of power sharing. How different people have a power sharing in government. While in Sri Lanka, what we see, when the government
tried to establish a majority government or majoritarianism, then it resulted into conflict and finally in civil war. स्वाभाविक सी बात है कि मानव में विविधता हो तो सुंदरता होती। किसी बागीचे में अलग अलग तरह के फूल लगे हों तो सुंदर वो दिखेगा। अब केवल एक ही तरह के फूलों को कर दिया जाए, बाकी को हटा दिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से देश में हमारे डाइवर्सिटी की बात होती है। डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी भी मेंटेन है। कब ये यूनिटी मेंटेन रहेगी? जब उस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाएगा, उस डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का प्रयास किया जाएगा। डाइवर्सिटी को जब डेमोलिश किया जाएगा तो यूनिटी भी नहीं रहेगी। लोग अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म या समूहों से बिलोंग करने वाले लोग हैं। अपना अपना तरीका है, कार्यप्रणाली है, चाहे धार्मिक कार्यप्रणाली की बात करें या सांस्कृतिक की बात करें, कि अपने संस्कृति को अपने तरीके से मानना, अपनी शिक्षा का प्रसार अपने तरीके से करना या धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने तरीके से कर सके। और चाहिए क्या, इंडिया जैसे देश में जो सेकुलर कंट्री है वहाँ होता भी है। इसी वजह से हमारी डाइवर्सिटी आज मेंटेन है और ये डाइवर्सिटी मेंटेन होने के साथ साथ यूनिटी भी बनी हुई है। इस तरीके से हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर को फिनिश करते हैं। कैसा लगा मेरा ये तरीका पढ़ाने का, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप सभी के लिए कुछ न कुछ नया करने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे आप लोग पढ़ें, जानें और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बनाएं। साथ ही आपको भी मेहनत करना है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है। और ऐसी विषम परिस्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में, जब कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रसार तेज़ी से हो रहा है, अपने आप को बचाए रखें। आप अपनी ऊर्जा को बचाएं और सही सदुपयोग करें उस ऊर्जा का। घर पे रहें, ज़रूर 2-4 मिनट 5 मिनट अपने योगा के लिए या फिजिकल एक्सरसाइज के लिए दें। साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा जो इशू किया गया है ऐप, उस ऐप को डाउनलोड करें, आरोग्य सेतु ऐप। और जो कुछ भी नाम्स बताए गए हैं, जो कुछ भी उपाय बताए गए हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा, उन तरीक़ों को अपनाएं। अपने खान पान की प्रणाली को सही करें और स्वच्छता को मेंटेन करें। यदि बहुत आवश्यक न हो तो घर से बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें। बहुत इमरजेंसी हो तो जाएं, लेकिन ज़रूर मास्क लगा लें, चाहे वो आपके कपड़े से बना मास्क हो, मार्केट का मिला मास्क हो, या कुछ ना हो तो रुमाल से मास्क बना लें। इस तरीके से मास्क बना करके यूज करें और हाथ की सफाई करते रहें। अच्छे से आप लोग रहें, अच्छे से पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।